The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you to one more episode of the Masterclass series. This is the moment we have all been waiting for with bated breath. Today we have with us a man of extraordinary abilities, Romil Bhartwal, and we are also grateful and privileged to have with us Dr. Anuj Kakkar, the President and Executive Director of Aptech Limited. Anuj sir, a very warm welcome to you, sir. Thank you very much for taking time from your busy schedule. And we would now request you to make the introductory remarks, sir. Thank you, Shajan. Can you, just give me a thumbs up if you can hear me properly. Okay, thank you so much, and warm welcome to all the students and others who have joined this session. Now, I just want to talk to you. Really, you've all gathered here to listen to Romil and not to me. So I won't take too much of your time. So, Romil is a great achiever and he has lots and lots of very exciting stuff to share with all of us. And we are really looking forward to that. But just before he starts off, I thought it's important to set the context of what Romil is about to tell you and where it fits into your student life and why it is important to you to listen to people like Romil. See, most of you are either undergoing one course or the other in one or the other branch of Aptech. Some of you may be undergoing, let's say, technology courses. Now, some of you may be undergoing some other course. Now, no matter what subject that you study in your course, the important thing you to remember is that it will soon be obsolete. Either it will be obsolete because the technology has changed, or it will be obsolete because you have forgotten the nitty-gritties of what you have learned in the class. So the question really arises is that what are you really learning? Are you trying to, most of you would like to do a job after this, right? So if you're trying to prepare yourself for a job, then which job are you trying to prepare yourself for? Are you trying to prepare yourself for the first job that you're likely to get, which is fine. But what about 2 years from now? What about 3 years from now? What about 5 years from now? Shajan, can you mute your, yeah. Yeah, can others please mute I'm getting a lot of disturbance on the phone. Yeah. So the important thing is to realize for which kind of job or which type of job that you're trying to prepare yourself for. If your intention is to learn only for the next 2 years, then what you're doing is fine. But the question is not that we are preparing you only for the next 2 years. We're not preparing you even for the next 5 years. We are trying to prepare you for the rest of your professional life or your working career. Now, if we are trying to prepare you for the rest of your life or your working career, it is important for us as your trainers or educators to understand that many of the things you're not going to require them. So the basis on which we put our type of training, our methodology of training is not really essentially only on the technical skills. Of course, that is needed and it goes without saying. But it is your life skills. What are the kind of life skills you require? Let's say, for example, we have gone through this COVID period. Now, this has been a kind of a blow to all of us. But who will recover from this faster? The people who have resilience. Resilience क्या होता है? Resilience बड़ा word है, but एक simple से उसका I hope I'm okay in Hindi or English.
I'll switch between the two and I'll try and speak in both the languages. मैं दोनों भाषाओं में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके. तो ये रेजिलियंस क्या है, हम क्यों सिखाते हैं रेजिलियंस और कैसे सिखाते हैं? रेजिलियंस एक ऐसा शब्द है कि अगर आप डाउन हो किसी वजह से भी, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से आज आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी अनहोनी हो गई है, तो वो लाइफ का एंड नहीं हो जाता. उससे कैसे उभरना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू हैव टू लर्न टुडे इन दिस पीरियड. ये लाइफ तो आपको सिखाएगी, but more importantly, it has to be part of the way education is designed. So that is, for example, one skill. Another life skill, particularly in any kind of a corporate setup, is teamwork. अब आप अकेले ही सब चीज अचीव नहीं कर पाओगे, no matter which area of work that you go in. और अगर आपका काम भी अकेले का है, तब भी आपको कम से कम 20 लोगों से 25 लोगों से मिल के उनको अपने आइडियाज बताने हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस समझनी है, उनका काम समझना है और अल्टीमेटली आपने डिलीवर करना है. तो इस परिस्थिति में क्या होता है, आपने एक टीम में कैसे ऑपरेट करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल आ जाती है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट दीज आर स्किल्स यू कैन ओनली लर्न, और इट इज बेस्ट learned in your formative years. एक बार जब आपकी पर्सनालिटी सेट हो चुकी होती है, तो बाद में यही चीज सीखी जा सकती है, बट मुश्किल आती है, क्योंकि आपका एक चीज आप एक ढर्रे में जा चुके होते हो. तो उस दौरान में जब आपकी ये एजुकेशन चल रही है, उस दौरान में ही ये स्किल सबसे आसान होती है एज एजुकेटर्स हमको सिखानी है, एंड एज स्टूडेंट्स आपको सीखने के लिए. So that is another area which we give a lot of emphasis on. Third skill I'll talk about is curiosity. You have to be able to be curious कि आपको नई चीजें सीखनी है, आपने एक नए पैगाम पे पहुंचना है, तो you have to learn new things. तो अपने आप नहीं आती है. यहाँ पे तो चलो आप क्लास में जाते हो एंड आपको टीचर्स हैं, आपके एक करिकुलम है, एक सेट पैटर्न है, आप सीख जाते हो. पर जब आप अपनी लाइफ में जाओगे, 2 साल बाद आप अपने जॉब में बैठे हो, उस टाइम पे कोई नहीं बताने वाले आपको कि आपने क्या चीज सीखना है. तो आपके एक अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ताकि मैं नई चीजें, कोई नई चीज आ रही है उसके बारे में आई शुड बी अवेयर, आई शुड बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ. And then only I will be able to progress. So that is another very, very important skill that you should learn. I'll just give you one, I'll give you an example of creativity. You know, all of us are creative in life, but very, very few people actually utilize our own inherent creativity for our own benefit. आज की तारीख में यू नो देयर इज अ वेरी, द ऑडियंस आज जो मेरे को सुन रही है, सारे एप्टेक स्टूडेंट्स हैं और कुछ एप्टेक के टीचर्स हैं, एप्टेक के पार्टनर्स हैं, सेंटर वाले हैं. तो मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूं कि ट्राई एंड इम्पार्ट एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी इन द एजुकेशन. ये कैसे करी जा सकती है? सी लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आप लोग एक कोई स्किल सीख रहे हैं, लेकिन जो समझिए एविएशन वाले हैं या आईटी वाले हैं, वो समझो एक कोडिंग सीख रहे हैं या एक पर्टिकुलर प्रोसेस सीख रहे हैं. नाउ उस प्रोसेस को आपके 50 बच्चे और भी सीख रहे हैं आपकी क्लास में. एप्टेक के 800 सेंटर हैं, तो 800 में into 50 people are also learning the same thing. So then the question becomes, if 4,000, 5,000 people are learning the same thing, now you multiply it by all the other methods of places where people are educating themselves. There are so many people who are today learning the same thing. Exactly the same thing you are learning as far as the process or technique or any one particular aspect of your curriculum is concerned. आपने अपने आप से ये पूछना है कि how will I stand out? क्या चीज है जो which defines me
मेरी इंडिविजुअलिटी कहाँ आएगी उस बारे में। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो या इंटरव्यू छोड़ दो, आप किसी भी सिचुएशन में हो जहां पे 5,000 लोग हैं जिनको आपके बारे में वही स्किल मालूम है, वही प्रोसेस मालूम है, वही कोडिंग मालूम है, वही टेक्निक्स मालूम है, बट यू हैव टू स्टैंड आउट। हाउ विल यू स्टैंड आउट, ये आपने सोचना है। मैं अपने आप को डिफरेंट तरीके से स्टैंड आउट कराऊंगा क्योंकि वो मेरा है। आई दैट इज माई इंडिविजुअलिटी इन दैट 5,000। और वो चीज में ओरिजिनलिटी बहुत जरूरत होती है। अगर मैं जितना भी सोच लूं, 4 लोग को मैं सेम स्क्रिप्ट दे दूं, वो चारों लोग सेम स्क्रिप्ट को डिफरेंट तरीके से पढ़ के बताएंगे आप। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनकी एक इंडिविजुअल बोलने का तरीका है, एक इंडिविजुअल लहजा है, एक इंडिविजुअल टेक्निक्स है, एक कुछ चीजें हैं वो एम्फसाइज बेटर कर पाते हैं। तो सबका एक तरीका होता है, सबका एक आउटलुक होता है जिससे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को दर्शा सकते हैं। There are many ways by which they can show their own individuality in given each situations. Now, this is very important, particularly when you're trying to get your first job. Now, when 200 people are going to apply for 20 positions or 5 positions, why should a person choose you? Should be visible in the first 20 seconds, 60 seconds, or at most the first 3 minutes. If it is not there, then it becomes an uphill task. Therefore, you have to practice. You have to be sure. You have to think a lot to see what defines you. This is your inherent creativity. In any situation, you will be able to find areas where your own creative self can be defined and projected. आपने दर्शाना है। सिर्फ आपको मालूम है, आपके ब्रदर को मालूम है, आपके पेरेंट्स को मालूम है, उससे फायदा नहीं है। आपको बताना है कि मैं कोई भी सेशन में जाऊंगा, चाहे भले ही मैं अगली क्लास में जाऊंगा, मेरे टीचर वही चीज पढ़ाएंगे जो मेरे को बाकी 50 बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अगर मेरे को स्टैंड आउट करना है क्लास में, मैं कैसे उस चीज को स्टैंड आउट करा सकता हूं ताकि मेरे ऊपर टीचर ज्यादा ध्यान दे, is something which you have to define for yourself. So while we have to work together, we also have to work individually within the teamwork to be able to bring our own little individuality or value addition to the process. आज क्रिकेट की टीम ले लीजिए, बैट्समैन भी होते हैं, बॉलर भी होते हैं, फील्डर्स भी होते हैं, ऑलराउंडर्स भी होते हैं, सारे मिलकर टीम बनती है। तो उसको वो तो हो गया टीम वर्क, एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। बट क्या सारे लोग अगर सारे बैट्समैन टीम में आ जाएं, या सारे बॉलर्स टीम में आ जाएं, या सारे ऑलराउंडर्स भी हो जाएं, तो बेस्ट टीम नहीं बन सकती है। तो बेस्ट टीम में पीपल लुक एट हु इज अ गुड ओपनर, लेट अस हैव 2 गुड ओपनर्स. Who is a good wicket keeper? Let us get 1 wicket keeper. Let us get 3 bowlers, 4 bowlers, so that at the end of the day, when the team enters the field, you have people of varying skills who together will achieve the objective, which is common. Objective is common, but everybody adds value in their own way. और दूसरी क्या होती है, you know, life में downfalls बहुत आते हैं. In life is never about it is never smooth, and nobody else knows this better than Shajan and Romil, who are here in the going to speak to you. And there will be a weather will go bad on a mountain, और आपने बहुत planning करी होगी, weather will go bad. Now just take the imagine, because of the COVID scenario, the 2020 Olympics have been postponed. We don't know when it will be held. But think of all the people who have spent at least the last 5 years of their life and much more before that dedicated unka ek, you know, just imagine the disappointment in that person who was selected for the Olympics and the Olympics has gone postponed. Kya uske man mein beet rahi hogi? But is it the end of the world for him? It depends on the person. He can view it कि मेरे अंदर बहुत हादसा हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, सिलेक्शन हुआ, मेरा सब कुछ हुआ, बट ये प्रॉब्लम हो गई, एंड आई हैड नो कंट्रोल ओवर दिस. तो क्या वो हताश होकर बैठ जाए? कैसे उससे राइज करना है,
कैसे उससे आगे बढ़ना है. How do you take disappointments in your stride and actually learn from them and go ahead? I'm sure Romil will tell us a lot more about this, but there are many people who have to withdraw from the highest level of Everest. They're not able to scale the summit just because of some weather problem or somebody's got hurt or something has happened. Look at how much he has climbed, and at the last minute something has happened, and because of over which he had no control. And yet the same person goes back and makes another attempt. How does that do it? Is it because it does not happen on its own? Because somebody has trained that person, that person has trained himself to be able to develop those kind of mindsets. So it's all in the mind. It is not as much in the classroom as it is in your mind. अगर आप अपने आप को, और जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है सारे सेंटर्स में जो हम लोग सिखाते हैं, उसमें इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं. जैसे इतने सारे इवेंट्स करते हैं हम लोग, इतने सारे प्रोजेक्ट्स देते हैं आपको, इतने सारे और एक्सकर्शंस होते हैं, तो वो सबके पीछे एक ना एक आइडिया रहता है. वो आइडिया क्या रहता है? अगर हम आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें 4 लोगों ने काम करना है, उसमें मुझे मालूम है 2 लोग सो जाएंगे, सिर्फ 2 ही लोग फाइनली काम करेंगे. बट आपने वो चारों को कैसे मिलके काम करना है इस टीम वर्क. We are trying to inculcate teamwork to you by giving you group projects. There are many projects which are individual. We are trying to teach you how to excel, how to show your individuality in those situations. There are many contests that we do. In those contests, somebody will win, but most of the people will lose. There will be only one winner. At best, there can be 1 silver and 1 gold, but the rest will not win out of all the people who contest. But why do we want all of you to participate? Because we want you to be able to learn that you will not scale the top peak in every attempt. You have to be able to train that how do I come back and do the job better next time, so that the next time I win. Now, this is all built into the education. शायद आपको ये चीज at first glance समझ में नहीं आएगी, या शायद आप नहीं समझ पाते हैं कि इसके पीछे क्या skills सिखाना चाह रहे हैं हम आपको. So those are the kind of, that is what distinguishes also Aptech from many other institutes and many other education providers, where the kind of holistic thinking that we do, that we are not trying to train you only for your first job or the next 2 years or next 5 years. We are trying to put you on the right footing. That koi bhi problem aaye, you will be little better placed to face that situation, to excel in that situation, to also celebrate your achievements. We also teach you how to celebrate achievements. I think it is very important. जब वो एक तिरंगा जाके माउंटेन में लगाया जाता है, उसका जो सिंबोलिज्म होता है, वो या तो लगाने वाला तो के अंदर जो एक भावना होती है, एक जो फीलिंग आती है, उसका आई डोंट थिंक देयर इज अ पैरेलल. वो तो होता ही होता है उसके लिए, बट जितने पिक्चर्स उसके आते हैं, एक नीचे पिक्चर भी है, दैट इज अ इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ फॉर ऑल द पीपल हु इवन व्यूज दैट पिक्चर, एंड इट इंस्पायर्स मेनी अदर पीपल टू फॉलो इन द थिंग. आपने सिर्फ फॉलोअर नहीं बनना है, आपने एक टाइम आके लीडर बनना है. तो आपने झंडा गाड़ना है. तो अगर आपने झंडा गाड़ना है, तो आपने आज से ही अपने माइंड को उस झंडा गाड़ने के, अपने लाइफ के झंडे को गाड़ने के लिए ट्रेन करना है. और ये चीज, ये आपके पूरा एजुकेशन प्रोसेस, आपके स्किल्स और आपकी अपनी मेहनत और आपके अपने नजरिए, आपकी इंडिविजुअलिटी, सबका मिश्रण है, सबका एक एमैल्गमेशन है, जिससे आप ये अचीव कर पाते हैं. So this is what the message that I really wanted to give to all the students today, and I really don't want to now come in between you and the exciting things which Romil wants to share with you. But before that, back to you, Shajan.
Thank you, Anush sir, for that thought-provoking insights. At Aptech, we have always placed our students at our heart of operations, and we will continue to do so. Now, for the man of the moment, Romil Barthwal, a person who truly exemplifies all qualities a human being aspires in their lifetime: grit, perseverance, never say die attitude, determination. Reading your profile, you gave me a heart attack, boss. He's done everything. He's run, he's climbed, he's swam, and he does not do it. He excels in whatever he does. Podium finisher at the Ironman contest, summited Mount Everest, bicycle for, I mean, how much kilometers? 100, 200, 400, 600, you name it, and he has done that. And the right person to deliver the session on unlocking the mind, I introduce to all of you Romil Barthwal. Romil Barthwal, welcome to Aptech Masterclass Series. Thank you so much, Sajan, for the kind words. And first of all, thanks to Dr. Anuj for the words of wisdom. I mean, I really feel blessed being here, addressing so many students, you know. And addressing students is very, very special because, as Anuj sir also said, you know, I've addressed a lot of people, a lot of grown up too, but then it gives immense satisfaction inside. जब आप बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, because 18 years, 20 years, वो एज रहती है जब आप मोल्ड कर सकते हैं इंडिविजुअल को. You have a lot of things you can learn, and then that is the best time so that whatever you're doing can make an impact. So I'll try my best. And the wonderful topic today, I mean, unlocking the mind, because as we say, you know, अगर आपके हाथ खराब हो तो दूसरे हाथ से काम चल सकता है. Without hands also people have been able to do. Last year, once we were going for Everest, we had one individual. She was from the US Army, तो उसका एक पाँव नहीं था, but then she was climbing for Everest. तो हाथ पाँव ना हो तब भी चलता है. हार्ट अटैक अगर आ जाए, हार्ट भी रिप्लेस हो जाए तब भी चलता है. बट ब्रेन ऐसी चीज है, that is the only thing which matters in life, you know. अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, if you are not a slave of your brain, but then you are master, then everything is achieved, right? So it's important कि आप सेल्फ डिसिप्लिन से अपने दिमाग को कंट्रोल करें और चैनलाइज करें अपने थॉट्स टू स्टे पॉजिटिव. चाहे कोविड हो चाहे ना हो, यू नो. हमें अभी इतने अच्छे सिचुएशन में बैठे हैं घर के अंदर, हमें लग रहा है कि कोविड हो गया, क्या प्रॉब्लम है. बट वही चीज जैसे बताइए कि अब किसी ने इस साल एवरेस्ट जाना था, तो इमेजिन इतना पैसा उसने खर्च किया, इतना ट्रेनिंग किया, एंड लास्ट मोमेंट में पता चला कि एवरेस्ट एक्सपीडिशन इस साल नहीं हो पा रहे. या फिर ओलंपिक्स के लिए इतने सालों से ट्रेन किया, 4 साल 5 साल, फिर नहीं कर पाए. तो देयर लॉट ऑफ अदर पीपल, या कोई इतने बीमार पड़े हुए हैं. तो हमारी जो सिचुएशन है इतनी खराब नहीं है जितनी हमें लग रही है. तो सिचुएशन तभी हम बेटर बनाएंगे अगर हम अपने ब्रेन को कंडीशन कर पाएंगे. So thanks Sajan for inviting me. I think I'll try my best to do a good job and बच्चों को motivate कर पाएंगे. Romil, you made a very pertinent point that हाथ नहीं है तो भी चलेगा, पैर नहीं है तो भी चलेगा, but दिमाग नहीं है तो नहीं चलेगा, or rather application of the mind. So Romil, my opening question to you is that you have done some of the most daunting challenges which mankind can ever even dream of doing. Okay. When did you realize, आपको कब लगा कि आप ये सब चुनौती को आसानी से कर सकते हैं? आपको कब लगा, कौन सी उम्र में लगा ये? अच्छा सज्जन, हुआ क्या कि मैं एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से था. मेरे फादर ग्रैंडफादर कोई भी फौज से कोई रिलेशन नहीं था. एंड आई वाज फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड. लाइक माय ग्रैंडफादर वाज अ गार्ड इन डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब वेरी वेरी पुअर फैमिली. एंड देन माय फादर अगेन एट अ वेरी स्कूल टाइम ऑफ एज में ही स्टार्टेड वर्किंग. तो जब ऐसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो गुड वैल्यूज अपने आप आ जाती हैं. मतलब ऐसा कोई गिफ्टेड वाली चीजें नहीं रहती. तो जब मैंने 12वीं की, 12वीं के बाद मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में घुसा. नेशनल डिफेंस एकेडमी इज नोन एज द क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप. उसमें क्या रहता है, आपको वही वैल्यूज जैसे अभी बता रहे थे सर भी, वैल्यूज सिखाई जाती है कि आप उसमें सस्टेन कर पाए लाइफ में. उससे पहले मैं बताना चाहूंगा 1994 का टाइम था, यही जून का महीना चल रहा था. तो मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठा हुआ था. बहुत ही पतला होता था मैं उस समय. अभी तो मैं उस हिसाब से काफी ओवरवेट हूँ. बट देन अपना एग्जाम लिख रहा था मैं, तो इन्विजिलेटर आए मेरे पास. उन्होंने कहा बेटा तुम किस लिए आए हो? तो मैंने कहा सर एग्जाम देना है एनडीए का. और उन्होंने एकदम सारे 100-150 लोगों के बीच में काइंड ऑफ मजाक सा उड़ाया कि यार तुम तो इतने सूखे से हो, एनडीए और आर्मी इज नॉट फॉर यू. बिकॉज जनरली वी एसोसिएट आर्मी पीपल विद यू नो गुड बॉडी, 6 फीट हाइट, बड़ी बड़ी मूछें. तो ऐसे लोग एसोसिएट करते हैं और मैं बिल्कुल ही एकदम ऑपोजिट था. तो उन्होंने ऐसे जब मजाक उड़ाया तो मैंने एक दिल में बात सोची, यू नो. मैं उनको बोल नहीं पाया बिकॉज मैं एक 12th क्लास का बच्चा था और
काफी सीनियर थे वो जो इन्विजिलेटर थे, बट मैंने एक चीज सोची, उसके बारे में मैं आपको सब्सिक्वेंटली बताऊंगा कि क्या मेरे दिमाग में चीज आई। बट देन मेरे को लगा, और उसके बाद जब मैं दिसंबर में 94 में जब नेशनल डिफेंस अकेडमी में घुसा, तो वहां पे पहले हफ्ते मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। बट मेरे को लगा कि शायद रैगिंग चल रही होगी, तो इसलिए शायद मेरे को ज्यादा मुश्किल लग रहा है। और जब वही चीज कंटिन्यू होती रही 10 दिन 15 दिन, तो एक दिन सुबह का टाइम मेरे को अच्छी तरह याद है, सुबह बाथरूम में, हमारे कॉमन बाथरूम्स होते थे, तो बाथरूम में जाके आई वाज क्राइंग, बहुत तेज तेज रो रहा था मैं। तो मेरा एक सीनियर आया वहां पे, कहता रोमिल क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे तो 3 साल नहीं कटेंगे, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन कट गए, पर 3 साल ऐसे काट पाना मेरे बस की नहीं है। तो पहले तो उन्होंने काफी जोश दिलाने की कोशिश की, जैसे आपने ओडी मूवी में भी देखा होगा, हाउस द जोश, ये वो काफी ज्यादा उन्होंने पंप करने का किया, बट हालत उस समय फिट नहीं थी, मेरे को लगा नहीं हो पाएगा। देन उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से एक बात बताई, जो तब से मेरे दिमाग में जैसे कहते हैं घर कर गई, वही चीज आई। तो उन्होंने मेरे को बोला रोमिल क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर 3 साल की ट्रेनिंग इस हालत में तो नहीं हो सकती। कहते रोमिल फॉरगेट इट, 3 साल को भूल जाओ, छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलो, माइलस्टोन। जैसे आप तो मैराथन भागते हैं सज्जन भाई, आपको पता ही है, मैराथन अल्ट्रा मैराथन, जब आप मैराथन भागते हैं तो 42 किलोमीटर का एकदम नहीं सोचते स्टार्ट लाइन पे, आप सोचते हो पहले 5 किलोमीटर करूंगा, 1 किलोमीटर करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल तक पहुंचूंगा, उसके बाद से फिर आगे सोचेंगे। तो वही चीज उन्होंने एग्जैक्टली मेरे को कही कि छोटे छोटे टारगेट रखो लाइफ में, जैसे सुबह 4 बजे उठना है या 4:30 बजे उठना है, उठ गए, टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद बाथरूम गए, ब्रश किया, टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है? ब्रेकफास्ट करना है। तो छोटे छोटे अगर आप टारगेट रखेंगे लाइफ में तो ज्यादा ठीक रहेगा, बजाय इसके कि ओवरवेलमिंग बड़ा टारगेट लेके आप पहले डर जाओ, राइट? तो वो चीज मेरे दिमाग में रही, और वही चीज मैंने कैरी ऑन की जब मैं एवरेस्ट में भी गया। बिकॉज आपको बताना चाहूंगा, जब आप एवरेस्ट जाते हैं तो 5000 मीटर से जैसे आप बेस कैंप से क्लाइम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सांस नहीं आ रही, बहुत मुश्किल होता है सांस लेना, एंड इतना बड़ा बड़ा लोड लेके चल रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि यार 5000 मीटर में जब सांस नहीं ले पा रहा, तो 8800 मीटर में कैसे मैं चढ़ पाऊंगा? तो ये फीलिंग से कोई भी जो है बंदा वैसी हालत खराब हो जाए। बट माइंड में ये रहती है कि यार उसके बारे में नहीं सोचना, 8800 के बारे में सोचना है कि अगला स्टेप कैसे लेना है। एक एक स्टेप करके आप चलते रहते हैं और दिमाग में वो बिठाते रहते हैं कि अगला एक स्टेप पे ध्यान दूंगा। ड्रीम्स, सपने हर समय बड़े रखने दिमाग में कि बहुत बड़ा अचीव करना है, बट सीधा वहां पे कोई नहीं पहुंचता। अगर आपने 12वीं मंजिल में चढ़ना है तो पहले आप फर्स्ट फ्लोर में चढ़ेंगे, फिर सेकंड फ्लोर में, फिर थर्ड फ्लोर में, सीधा 12वीं मंजिल में कोई लैंड नहीं करता, राइट? तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप लेके, छोटे छोटे माइलस्टोन लेके, तो वही माइलस्टोन वाली चीज जो जैसे आपने पूछा कि कैसे आपका स्टार्ट हुआ, तो वो एनडीए ने सिखाया मेरे को, नेशनल डिफेंस अकेडमी। और मैं जानना चाहूंगा, इतने सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, अगर कोई जानता है तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकता है कि नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे माइलस्टोन लेके अचीव करें बिगर टारगेट्स इन लाइफ। रोमिल, आपने पहले तो काफी सारे बॉस्टन किया, फिर आपने ला अल्ट्रा किया, जो बहुत ही ग्रूसम और ब्रूटल है, बिकॉज द वेदर कंडीशंस आर नॉट एट ऑल कंड्यूसिव. Temperatures go up till minus, and then you're climbing, running at a peak of 17,000 feet above sea level. उसका बाद ये सब हासिल करने के बाद आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का ये निर्णय क्यों लिया? Why माउंट एवरेस्ट? अच्छा, अब होता क्या है लाइफ में, इवोल्यूशन वाली चीज आती है, जैसे डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन। पहले जो बच्चा होता है क्या करता है, सबसे पहले जब पैदा होगा तो पहले पलटना सीखता है, लेफ्ट राइट टर्न करेगा, लेफ्ट करेगा, फिर क्रॉल करना शुरू करता है, फिर वॉक करना शुरू करेगा, फिर रन करना स्टार्ट करता है। जैसे रनिंग में होता है, पहले 5 किलोमीटर भागेंगे, फिर 10 भागते हैं, फिर 15, 20, अल्ट्रा मैराथन। तो मेरा क्या हुआ, पहले मैंने जब रनिंग स्टार्ट किया तो रनिंग में अल्ट्रा मैराथन तक पहुंच गया, साइकिलिंग में किया तो साइकिलिंग में 300, 400, 600 किलोमीटर तक हो गया, फिर ट्रायथलन, हाफ आयरनमैन किया। तो मैंने कहा अब नया क्या ट्राई करें। होता क्या है कि आप कुछ अचीव कर ले तो नेक्स्ट चीज रहती है कि अब नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चले ना। तो जैसे पढ़ाई में भी था, जैसे एमटेक किया IIT खड़गपुर से, तो अब ये लगा कि अब नेक्स्ट क्या करें, तो नेक्स्ट, एंड आई वुड से आई एम वेरी वेरी लकी एंड गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड। मतलब जितना मैं चाहता था उससे ज्यादा ही भगवान ने मेरे को दिया है। हार्डवर्क वगैरह अपनी जगह है, बट गॉड की ब्लेसिंग्स, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, मेरी कंपनी, सब ने बहुत ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे मेरे को मौके मिलते रहे उसके हिसाब से टारगेट आते रहे। तो जब मैंने अल्ट्रा मैराथन वगैरह किया तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी लगा कि हाँ भाई ये लड़का जो है अच्छा कर रहा है, तो इसको और मौका दे सकते हैं। क्योंकि एक एक्सपीडिशन जाना था एवरेस्ट के लिए, तो बिकॉज मैं अच्छा कर रहा था एंड्योरेंस इवेंट्स में, तो मेरे को मौका दिया गया। एंड जब मौका मिला तो मैंने कहा फिर
लाइफ में हर बार ऐसा मौका मिलता नहीं है, तो मैंने कहा जब मौका मिलेगा तो बिल्कुल 200% जान लगानी, और बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बहुत पहले प्लानिंग किया, जितना स्ट्रैटेजी बना सकते थे कि कैसे कैसे ट्रेनिंग करना है, क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए उस ट्रेनिंग के लिए, उन सबको इम्प्लीमेंट किया। और तब जाके जब सबमिट किया तो फिर जब बहुत मेहनत करके आपको कुछ चीज मिलती है, तो जैसे सर बता रहे थे, झंडा लगाने वाली फील जो होती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं रहता। सारी थकान, सारा हार्डवर्क एकदम भूल जाते हैं। तो वही है, व्हाट हैज बीन ट्राइंग मौका मिला। Yeah, Romil, when you were doing the summiting in Mount Everest, of course, मैंने ऐसा सुना है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि lot of people die while, लोग मरते भी है, बहुत सारे लोग मरते हैं, you can see the bodies also lying over there, right? Especially when coming down. So आपको कभी भी ये डर था क्या कि मैं वापस जिंदा पहुंचूंगा या मैं क्या नाकामयाब रहेगा तो क्या होगा? Did that fear was there? Did you have any fear of failure? देखिए, अभी जब हम एक्सपीडिशन करके आए तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एक टीम मेंबर से पूछा, हम पीएम को ब्रीफ कर रहे थे, तो मोदी जी ने एक बच्चे से पूछा, 22 ईयर ओल्ड जो था, कि बेटा तुम्हें कैसा लगा जब एवरेस्ट पे गए? तो उस इंडिविजुअल ने कहा कि सर हम ऊपर चढ़ के वापस भी आ गए और पता ही नहीं चला कब हम चले गए। तो इस लेवल की ट्रेनिंग जो थी बहुत ही भयंकर थी। अभी भी सोचता हूँ तो डर लगता है, बिकॉज 1 साल तक सियाचिन में थे, कारगिल में थे, लेह में थे, बहुत ही ज्यादा हमने एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग की। तो अच्छी जब प्रिपरेशन करके जाते हैं किसी एग्जाम में, तो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने भी पढ़ा था, जब आप एवरेस्ट पे जाते हैं तो 200-250 के आसपास डेड बॉडीज वहीं पे पड़ी है, और वहां पे इतना टेम्परेचर ठंडा होता है कि आपको क्या कहते हैं, बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, तो वहीं पे पड़ी रहेंगी। एंड जब, और आप कितना भी पढ़ लें, मतलब जब आप पहली डेड बॉडी वहां पे देखते हैं ना, जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि यार हो सकता है मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो। तो जब पहली डेड बॉडी देखी तो एक्चुअली में काफी ज्यादा वो लगा, बट क्योंकि टीम का सपोर्ट था, टीम वर्क जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि हाँ, किसी दिन मेरा अगर अच्छा दिन नहीं है तो मेरे साथ वाले मेरे साथ हैं, वो सपोर्ट करेंगे। एंड जब आपने 1 साल साथ में खाया है, साथ में ट्रेनिंग किया है, साथ में एवरी टाइम यू बीन टुगेदर, तो यू नो द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मैच्योरिटी इज वेरी हाई। तो आपको लगता है कि भाई चाहे कुछ हो जाए करके रहेंगे। हाँ, कुछ अगर वेदर खराब हो गया या सिचुएशन ऐसी है विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, देन इट इज डिफरेंट, बट ऐसा नहीं होगा कि मैं ट्रेनिंग की वजह से वापस आ गया। तो इसलिए कॉन्फिडेंस अच्छा था, तो इसलिए कभी ऐसा ये नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा। ये था मेहनत लगेगी, बहुत कष्ट होगा, बट जब डेड बॉडीज देखी तब भी काफी डर लगा, बट कभी ऐसे लगा कि वापस जाएंगे अपना 100% दिए बिना। Romil, I wanted to ask you this question. How important is the power of the mind? और ये power of the mind का जो analogy है, ये जिंदगी का हर facet में apply कर सकता है? Like whatever you have done physically, you know, endurance, उसका जो mind का जो शक्ति है, mind को आपने खोला, and there is a saying in English that your mind is like a parachute. It expands when it opens. तो life के बाकी सारे एनालॉजी जो है बाकी सारे लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं हम क्या? एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। यू नो, जब एवरेस्ट के लिए भी जाते हैं या किसी भी और अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट के लिए जा रहे हैं आप, चाहे मैराथन हो, चाहे अल्ट्रा मैराथन, चाहे आयरन मैन, चाहे, अब आपको एक और चीज बताऊंगा, मैं जो है पैराशूट से भी मैंने जंप किया आर्मी में, जिसमें क्या होता है, आपको हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से जंप करना है, तो आर्मा पैराट्रूपर जो स्पेशल फोर्सेज वाले होते हैं। तो माइंड का जो होता है काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर बॉडी तभी सपोर्ट करेगी अगर आपका माइंड सपोर्ट कर रहा है। अगर आपका माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा और आपकी बॉडी कितनी भी अच्छी है, कुछ नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा। सो दैट्स व्हाई वी से, यू नो, इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे। दैट्स व्हाई फॉर एवरेस्ट ऑल्सो दे से कहते हैं कि 70% या 80% जो है आपका माइंड का गेम है, 20% 30% फिजिकल इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, फिजिकली फिट तो होना ही पड़ेगा, बट फिजिकल फिटनेस से ज्यादा जो है मेंटल टफनेस बहुत काम आती है। तो एब्सोल्युटली राइट, जैसा आपने बोला, नॉट जस्ट फॉर एवरेज, फॉर एनीथिंग, बीट पढ़ाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, मैं 3rd डिवीजन में मैंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद जब मैं एमटेक के लिए जाना था आईआईटी खड़गपुर में, तो मेरे को बताते हुए भी शर्म आती थी कि 3rd डिवीजन में ग्रेजुएशन के बाद एमटेक के लिए कैसे मैं सोच सकता हूँ आईआईटी खड़गपुर के लिए। बट ये माइंड ने कहा कि नहीं, देयर विल नेगेटिव साइड ऑफ द माइंड विच विल से कि नहीं यार नहीं कर सकते, एंड देयर विल बी पॉजिटिव साइड ऑफ माइंड की वो कहेगा कि भैया नहीं करना ही है,
अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो जब वो जज्बा आता है तो फिर लगता है कि नहीं भाई करना है तो करना ही है। तो उसके बाद फिर मेहनत रहती है। मेहनत अगर आपने कर लिया, आप में अगर है करने का, तो फिर आप नेगेटिव वाली चीज जो है माइंड में उसको सप्रेस करते हैं और देन यू कैन अचीव। So I think mind plays a great role. Okay, so we have a lot of our students are generally in the age group of 18 to 24 years, and all of them are standing at the cusp of building a successful career for themselves. आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे बच्चों को, क्या टिप्स है देना चाहते हो आप? सजन भाई, मैं एक ही चीज बताऊंगा। अभी हमारा जैसे सेशन शुरू हुए, लेट्स से आधा घंटा हुआ है, 30 मिनट लेके चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। एवरी सेकंड दुनिया में देयर आर 2 पीपल हु आर डाइंग, तो अगर हम 30 आधा घंटा लेके चलते हैं, मतलब कितना हो गया, 60 इंटू 30, 1800 सेकेंड हो गए। 1800 सेकेंड का मतलब 3500 लोग मस्ट हैव डाइड। इनमें से 90% हैव दिस रिग्रेट कि इन माय टाइम, जब मैं 18 से 24 जैसे एज ग्रुप है, आई कुड हैव डन दैट। मेरे पास मौका था करने का। ठीक है, जब 60 साल का या 50 साल का कोई होता है तो उसके पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस रहती है लाइफ में करने के लिए। बट ये जो एज है 18 वाली, 20 वाली, 24, 30 वाली, इसमें आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, है ना। बट क्या होता है, हम अपने फियर से डरते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, आई कुड हैव डन इट, आई शुड हैव डन इट, बट आई डिडंट डू। तो लाइफ में ये रिग्रेट कभी नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास मौका था और मैं नहीं कर पाया। आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतने अच्छे गाइड्स हैं आपके पास, जो आपको रेडी है कि आप ऐसा करो, आप जो आपने करना है कीजिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर आप अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं, अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं विच इज अगेन सेल्फ डिसिप्लिन, पूरे दिन आप व्हाट्सएप पे हैं, यूट्यूब में वीडियो देखने पर लगे हैं, इन चीजों में लगे हैं, तो दैट्स व्हाई ऑलवेज से यू शुड बी डूइंग व्हाट इज राइट फॉर यू, नॉट व्हाट यू वांट टू डू। इफ आई वांट टू डू कि भैया मैं सुबह से शाम तक वीडियो गेम खेलता रहूं, मोबाइल में गेम खेलता रहूं, व्हाट्सएप करूं, तो दैट इज रॉन्ग। आई नो व्हाट इज राइट फॉर मी, आई शुड डू व्हाट इज राइट फॉर मी रादर देन व्हाट आई थिंक इज राइट फॉर मी, राइट। तो मेरे को वो नहीं करना जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे को वो करना है जो सही है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए कि हैव सेल्फ डिसिप्लिन, और अपना कंट्रोल जो है माइंड का पॉजिटिव चीजों में लगाएं। जो टाइम वेस्टर्स है उन पे ना रखें, छोटी छोटी खुशियों के बीच में ना जाएं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलें लाइफ में कि कुछ बड़ा करना है, और इस बड़े को करने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन रखेंगे, उसको से अचीव करते रहेंगे। एंड आई थिंक देन स्काई इज द लिमिट। So we all now, we have now all realized that कि mind में बहुत शक्ति है, unlocking the mind is very important, But ये Right. mind को क्या train कर सकते हैं हम? Can we train our mind? Is it possible हो सकता है क्या? अच्छा, तो मैं बताता हूँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे लाइफ में। अगर मैं बताना शुरू करूंगा एक साइड से तो गिनती खत्म नहीं होगी, इतने सारे मेरे फेलियर्स थे, बट देन आई वाज नेवर वन ऑफ दोस्त की फेल हो गए तो फिर दिल तोड़ दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर एक क्लास में 30 लोग हैं तो फर्स्ट तो एक ही आएगा, ये तो गिवन है। 29 जो है वो तो फेल ही है उस हिसाब से कि अगर फर्स्ट आना चाहते थे और फर्स्ट नहीं आए। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फेलियर्स आर गोइंग टू बी देयर इन लाइफ। ऐसा कोई नहीं होगा कि 30 के 30 बच्चे जो है फर्स्ट आएंगे, या जो भी काम करना चाहते हैं फर्स्ट में फर्स्ट आओ, वो कभी नहीं होने वाला। बट जीत उसी की होगी जो मेहनत करता रहेगा। तो मैं क्या था, जैसे मैंने बताया, ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन में था, रनिंग में बहुत ही बेकार होता था मैं। ठीक है, ऐसी फर्स्ट एक्सपीडिशन में 1998 में गया, उसमें फेल हो गए। एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ का था, ही डाइड, मैं 21 साल का था, मेरे साथ वाला जो टीम मेंबर था, एक नर्सिंग असिस्टेंट जो था हमारे साथ एक्सपीडिशन में गया, ही डाइड। तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था। तो वो फेलियर्स आते रहे। पढ़ाई में फिर बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, तो फेलियर्स आते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा लाइफ में। बट देन आपको कभी रुकना नहीं है। देयर इज अ ब्यूटीफुल डायलॉग, एक मूवी में बताऊंगा आपको, रॉकी करके, आप देखिएगा, बॉक्सिंग की मूवी है। बिकॉज मैं एनडीए IIM में बॉक्सिंग करता था, तो आई एम अ बिग फैन। तो उसमें हीरो जो होता है वो ये डायलॉग कहता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने कितने पंच मार दिए ओपोनेंट पे, जरूरी ये है कि लाइफ ने आपको कितने पंच मारे और आप उसके बाद खड़े हो सके। पढ़ते रहेंगे, फेल होते रहेंगे आप लाइफ में, कभी डरने का नहीं है। फेल हो गए। That's why it's a very important saying which comes these days, which says, fail early and fail fast. कोशिश कीजिए, फेल होइए, बट मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, मेहनत करते रहना है।
तो इसीलिए क्या रहा मेरा कि मेहनत करते रहे, जो चीज करनी थी पूरे 100% मेहनत से की। जब मैं 3rd डिवीजन भी आया तो ऐसा नहीं था मैं पढ़ाई में मेहनत नहीं करता था, बहुत मेहनत करता था। बट ठीक है, सबका रिजल्ट एक सा नहीं आता, सबको टाइम लगता है अपना पीक पहुंचने में, मेरे को बहुत टाइम लगा। बट देन जब एक बार पीक में पहुंच जाते हैं ना, जब आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो, जैसे बताते हैं इंडियन फ्लैग जब आप ऊपर लगाते हैं एवरेस्ट में, या जब आप IIT खड़गपुर में क्रैक किया, या और अचीवमेंट जैसे मैंने बताया बॉस्टन किया या कुछ किया, तो जब सक्सेस वाली फील आती है, दैट इज ट्रेमेंडस। उस फीलिंग का कोई मुकाबला नहीं है। जितना आपने हार्डवर्क किया है सब भूल जाते हैं आप पे। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि अपना हार्डवर्क करते रहिए। चाहे 18 से 24 वाले हैं आप, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आपके पास दिस द राइट टाइम फॉर यू टू बिल्ड योर हार्ड वर्क, बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड डू योर वर्क। आई थिंक आपने और अनुज सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, रेजिलियंस, कि लाइफ इज नॉट अबाउट सेटबैक, लाइफ इज अबाउट हाउ यू फाइट बैक। तो आपका प्रोफाइल मतलब सुन के लोगों को लगेंगे कि यार कल आपको कल जीत ही हासिल हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। यू हैव आल्सो फेल्ड अ लॉट बट यू हैव फाउट बैक वैलियंटली एंड कम बैक एज अ विनर। सो अभी तो आपने सब कुछ किया बॉस, आयरन भी किया आपने, अल्ट्रा भी किया, माउंट एवरेस्ट भी समिट किया, काफी सारे माउंटेन भी सुमे, कुछ बाकी रहा है क्या करने के लिए? सचिन भाई, जिंदगी एक ही है, ठीक है, सबको एक ही जिंदगी मिलनी है, तो जितना सब कुछ कर सकते हैं समेट लेना चाहिए। तो इसलिए जैसे मैंने बताया, एवरेस्ट का मौका मिला, पूरी जान लगाई, ठीक है, रनिंग का मौका मिला, बॉस्टन किया, ला अल्ट्रा किया, साइकिलिंग का मिला किया, पढ़ाई का मौका मिला, ठीक है, IIT खड़गपुर में जाने का हो गया, अभी IIM लखनऊ में थे तो IIM लखनऊ का मौका मिला, साथ ही साथ आर्मी में थे तो पैराट्रूपर एरोप्लेन से जंप करने का मौका मिला। बहुत सारी और चीजें हैं करने के लिए, ठीक है। अभी जैसे मेरे को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि जो मैंने सीखा है इतना अपनी लाइफ में, लास्ट 26 साल हो गए मेरे को आर्मी में घुसे हुए, 94 में गया था, तो जो मैंने सीखा है वो शेयर करना लोगों से, सो दैट अगर इतने सारे लोग सुन रहे हैं, अगर एक को भी इम्पैक्ट हो पाए, एक भी कुछ, एक इंडिविजुअल भी अगर कोई लेसन ले लेता है, तो दैट एम इज अचीव्ड, यू नो, कि मैंने जो सीखा था अगर कोई ट्रांसलेट कर पाता हूँ मैं किसी की लाइफ इम्पैक्ट करने में, कोई इसमें से सीख लेता है कुछ, तो दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। कि हाँ भाई ठीक है सर, हमने आपका एक सुना था, हमें बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट हुए। बिकॉज होता क्या है, सुन लिए, खत्म हो गई कहानी वहां पे। बट वही ब्रेन को आपने कैसे ट्रेन करना है कि नहीं, जो सुना है उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे आपने सही बात बोली कि लॉट ऑफ पीपल दे टेल मी कि यार यू आर लकी, ठीक है लकी रहे, बट आपने वो वाला फेज नहीं देखा जहां स्ट्रगल किया। स्ट्रगल सब करते हैं, शॉर्टकट किसी को नहीं मिलता, सबने स्ट्रगल करना है। और जब आप स्ट्रगल करते हैं तो ऊपर वाला अपने आप देना ही देना है उसको, यू नो, इट्स नॉट दैट यू आर डूइंग योर वर्क एंड गॉड इज नॉट गोइंग टू गिव इट यू। बाउंड टू सक्सीड प्रोवाइडेड यू हैव द रेजिलियंस एंड पेशेंस, की थोड़ा वेट करेंगे अपना भी, सब अच्छा होने वाला है। So, Romil, your story is absolutely exciting, okay, and incredible and inspiration to say the least. मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑडियंस को ये मौका दिया जाए to ask questions. So, audience, you can chat your questions here, and Romil will be delighted to answer you. In the interim, Romil, you can share the pictures of the expedition to Mount Everest, and you can talk them through the journey. Okay, so Sajan bhai, just confirm if you are able to see the screen. Yeah, I'm seeing the screen. I can see the screen. Okay, so I would like to tell the viewers, ये जो आपको सीन नजर आ रहा है, ये हमने ये जो है यहाँ पे आपका कहीं, जहाँ मेरा माउस इस समय, यहाँ पे कहीं आपका कैंप 2 रहता है, और यहाँ से आप खड़ी चढ़ाई रहती है, जिससे होता है ना खड़ी चढ़ाई, इस पे आप कैंप 3 की तरफ मार्च करते हैं। तो ये आपका सिनेरियो रहता है जब आप क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं बिटवीन फ्रॉम बेस कैंप टू एवरेस्ट। ये इंडियन फ्लैग जैसे हम लेके चल रहे थे, तो यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं, यहाँ से फिर आप ऊपर जाके समवेयर हियर इज कैंप 3। ये देखिए आपको टेंट नजर आएंगे, जब मैं जूम करूंगा, 1 मिनट। दिस इज कैंप 3, और यहाँ से लोग धीरे धीरे सीधी की तरह आपको नजर आते रहते हैं ऊपर चढ़ते हुए एक्सपीडिशन की तरफ, राइट। तो एवरेस्ट जाते समय क्या होता है, आपको 4 कैंप क्रॉस करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपने चढ़ना शुरू किया और आप पहले कैंप में गए, दूसरे कैंप में गए, तो आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, सो दैट आपकी बॉडी जो है यूज टू हो जाए उस टाइप के एटमोस्फेयर को झेलने के लिए।
मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो ये जर्नली आपको बताएगा कि किस टाइप से वहां पानी चलती है जब आप एवरेस्ट पे होते हैं, बिकॉज वहां पे विंड स्पीड जो होती है 100 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और स्पीड जो जाती है इतनी धीरे धीरे हो जाती है आपकी। ये देखिए, ये जो है कैंप 2 से कैंप 3 में चढ़ रहे हैं, तो टोटल मैंने बताया 4 कैंप होते हैं। तो हवाएं जो होती है इस स्पीड से चलती हैं कि आपको उड़ा के ले जाए। यहाँ पे कहीं ऊपर जाके कैंप 4 आता है और उसके ऊपर फिर कैंप एवरेस्ट टॉप। तो ये देखिए, एक इंडिविजुअल जब चलना शुरू करता है तो एक स्टेप लेगा, फिर वेट करता है क्योंकि सांस इतनी चढ़ जाती है। ये देखिए, एक स्टेप लिया, अब सांस लेने के लिए वेट कर रहा है, और ये आंधी ऐसी चलने पर लगी। दिस इज नॉर्मल जो वहां पे हवाएं चलती रहेंगी। और ये धीरे नहीं चल रहा, यहाँ पे यही स्पीड होती है। ये तो वो लोग हैं जो आर्मी की इतनी भयंकर ट्रेनिंग के बाद वहां पे पहुंचे। अदरवाइज एक स्टेप लेने के बाद आपको 4 या 5 बार सांस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे, राइट। ये जो है, जब आप सबमिट करके नीचे आते हैं बेस कैंप में, तो आपके बाकी टीम मेंबर्स आपको वेलकम करने के लिए रहते हैं। तो ये पूरा बर्फ घिरा रहता है। ये मेरे टीम मेंबर्स, ये मैं, तो मेरे हाथ में कैमरा थे, उसने फिर कैमरा लिया। एंड ये जो फीलिंग जो रहती है, ये फीलिंग बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बिकॉज इतनी मेहनत, इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद ये मौका मिलता है वहां पहुंचने का। और आपके टीम मेंबर्स नीचे से एवरी टाइम दे आर सो कंसर्न, मॉनिटर करते रहते हैं कि टीम कहाँ पे पहुंची है, किस स्टेट में है, ठीक है। तो खुशी का माहौल जो रहता है बहुत ही ज्यादा रहता है। स्पेशली हमारे साथ इसलिए अच्छा रहा बिकॉज लास्ट ईयर जब हम एवरेस्ट में थे तो उस रीजन में 18 लोग की डेथ हुई थी, और हमारी ऐसी टीम थी। तो ये मेरे टीम मेंबर मेरे को ये खाता पहनाते हुए, तो ये वहां पे सेलिब्रेशन टाइम, तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये फील जो होती है तभी पॉसिबल है जब आपने मेहनत की हो। और जैसे बोलते हैं कि जब आपने मेहनत की हो उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उसका फिर लेवल ही अलग होता है। तो यहाँ पे आके फिर अपना गेयर वगैरह हल्का, बिकॉज ये वो टाइम रहता है जब 5 दिनों से आपने खाना पीना बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो होता है, सांस नहीं लिया जाता, स्किन एकदम जल रहा होता है, आंखों से नजर नहीं आ रहा, टेम्परेरी स्नो ब्लाइंडनेस टाइप रहता है। जितनी बुरी हालत हो सकती थी उतनी बुरी हालत रहती है, ये वो वाला टाइम रहता है। तो यहाँ पे आके सबने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया, एंड जो सेटिस्फैक्शन वाली फील रहती है वो, आई मीन दिस इज अनपैरेलल। कोई चीज ऐसी नहीं जो इस फील को, ये देखिए उसने जो अभी स्क्रीन पर मॉइस्चर जमा हो जाता है कि आप सब उसमें कवर्ड हो जाता है, तो इसलिए जब स्क्रीन क्लियर किया तब जाके फिर क्लियर नजर आने लगा। ये वाली जो पिक्चर है मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ, ये वाली पिक्चर है टॉप ऑफ एवरेस्ट। जब आप एवरेस्ट समिट पर पहुंचते हैं तो जो आपको नजर आता है, तो ये उस समय का टाइम है जब सनराइज हो रहा था। ये पीछे आप देख सकते हैं। और मैं समिट पे जाके, क्योंकि फोटोग्राफ आना बहुत जरूरी है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपको ग्लव्स नजर आ रहे हैं, ये 4 पेयर ऑफ ग्लव्स पहने थे मैंने। यहाँ ये नहीं होता कि एक ग्लव पहन लिया तो हो गया, 4 जोड़ी ग्लव्स पहने थे। उसके बाद फिर जाके हाथ में तभी भी सेंसेशन रहती है। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट, तो अगर आप ध्यान से अगर फेस को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितना बर्निंग हो जाता है, क्योंकि सन की लाइट जो होती है, यूवी लाइट, वो सनलाइट जो आपके स्किन पर ऐसे पड़ती है कि पूरा का पूरा काला हो जाता है स्किन। ये देखिए, ये पूरी बर्फ यहाँ पे जमी हुई है। आंखों की जो आईलिड्स होती है, पलकें जिसे बोलते हैं, उसमें भी बर्फ जमी रहती है। और यहाँ पूरा स्किन एकदम बर्निंग वाली चीज जो रहती है। तो उस समय तो और कुछ होश नहीं रहता, यही होश रहता है कि इस समय जिस काम से आए हैं वो इस काम को करना है और देश का नाम रोशन करना है। बिकॉज अगर आप सबमिट करके नहीं आते तो आई एम श्योर बुरा तो लगता ही है, बिकॉज इतनी मेहनत आपने की भी है, सारी आपकी फैमिली, सबका इतना सपोर्ट रहता है। ये बाकी यार डिसिप्लिन में आपने फिनिश लाइन टच किया तो आपका काम समाप्त हो गया, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे दैट इज हाफ डन बिकॉज यू हैव टू रीच बैक आल्सो सेफली। एब्सोल्युटली। तो वही मैं उसमें है, उतरने में है ना। तो जॉब इज स्टिल हाफ, वंस यू सबमिटेड आल्सो, काम अभी पूरा नहीं हुआ जब तक आप सेफली अपना बेस कैंप तक नहीं पहुंचे। बहुत सही आपने बात बताई
तो ये जो पीछे फोटोग्राफ नजर आ रही है आपको, ये है टेंट जो कि बेस कैंप में रहते हैं। तो बेस कैंप में जब तक आप नहीं पहुंचते तब तक आपके दिमाग में ये रहता है कि आपको सारे टीम मेंबर्स को सेफ लाना है, बिकॉज जो मैं टीम लीडर था, तो टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली, मेरे साथ 14 मेंबर्स थे, तो 14 मेंबर्स की हमारी जो टीम थी, तो एज अ टीम लीडर, टीम कैप्टन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सारे के सारे टीम मेंबर्स सेफली वापस आए विदाउट एनी स्क्रैच या स्नो ब्लाइंडनेस, या बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। आई रिमेम्बर जब हम बेस कैंप से समिट के लिए जाने थे, तभी पता चला कि एक टीम जो कि समिट पे गई है उसका एक मेंबर की डेथ हो गई थी, इंडियन ही था। तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज चाहे आप जानो ना जानो, बट अगर आपको पता चले कि किसी की डेथ हो गई और वो भी एवरेज जाते समय एडवेंचर करते हुए, तो बहुत बुरा लगता है। और जैसे सज्जन भाई ने बताया कि 1/3 जो डेथ होती है एवरेस्ट में वो वापिस आते समय होती है। तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसा लगा जब आप समिट में पहुंचे, तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि वहां पे जैसे ही मैं पहुंचा, मेरे को ये था कि सबके सब टीम मेंबर्स को सही सलामत बेस कैंप पे लाना है, बिकॉज आप समिट पे पहुंच गए और वापस आते समय अगर किसी की उंगली गल गई, बिकॉज वहां पे फ्रॉस्ट बाइट, ये सारी चीजें बहुत होती है, फ्रॉस्ट बाइट हो गई, कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई, तो फिर इट विल बी अ काइंड ऑफ सक्सेसफुल एक्सपेडिशन, मैं उसको काउंट नहीं करता। तो इसलिए बहुत जरूरी रहता है कि जल्दी से जल्दी वहां से वापस आए। और वहां वाला जोन जो होता है एक कैंप 4 से अबव, उसको डेथ जोन बोलते हैं। डेथ जोन इसीलिए बोलते हैं कि वहां पे अगर आप कुछ ना भी करें तो आपकी बॉडी अपने आप को खाने पे लगी अंदर, आप बाहर से कुछ खा नहीं सकते, बिकॉज आपकी इतना ऑक्सीजन नहीं रहता कि फूड को डाइजेस्ट करे। जब आप खा रहे हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वोमिट कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी रहता है कि आप कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट खाते रहें और अपना ब्रेन को फोकस करें कि नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, यही आज मौका है मेरे को अपने आप को प्रूव करने का। और इसलिए जब आप समिट पे जाते हैं, आप कम से कम टाइम बिता के आपको ये रहता है कि नीचे पहुंचते हैं, और जब आप बेस कैंप में पहुंचते हैं तो जैसे मैंने वीडियो दिखाया, फिर वही हालत रहती है कि भाई चलो सही सलामत वापस आ गए। एंड दैट फीलिंग इज अमेजिंग, बिकॉज यू सी लॉट ऑफ पीपल, वहां पे कोई फिंगर्स लूज हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो यू डोंट वांट कि आपकी टीम मेंबर्स के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो। So we have some questions, very interesting questions coming in from students. One of the question is Srivastava ने पूछा है, I will ask you both the questions, you can answer them one by one. दीक्षा ने एक सवाल पूछा है कि माउंटेनियरिंग करने का प्रोसेस क्या है, और आप जब शुरू, when you started your climb, so what was the feeling, what is going through your mind, emotions playing in your mind? That is Diksha's question. And Srivastava as a student is asked this question that negativity, हमारे सबके दिमाग में जब भी हम न्यूज देखते हैं तो नेगेटिविटी है, हम नेट ऑन करते हैं तो नेगेटिव, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डेथ हो रहा है, तो ये नेगेटिविटी से कैसे दूर भगाना है? हाउ डू वी ड्राइव नेगेटिविटी आउट फ्रॉम आवर सिस्टम? व्हाट डू वी डू? ओके, तो पहले मैं नेगेटिविटी वाली चीज लेता हूँ। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, आई मीन नो डाउट कि जैसे मैंने बताया, दिमाग में 2 चीजें होती हैं, एक है जो आपको पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, एक चीज जो है जो नेगेटिव की तरफ, आपको नीचे की तरफ खींचता रहेगा। तो जानते हम सब हैं कि हमारे लिए क्या सही है, यू नो, पॉजिटिव नेगेटिव सबके अंदर रहेंगे, वन विल बी गुड, वन विल बी बैड। तो हमें जब पता है कि हमें क्या अच्छा है और हम उसको ना करें, तभी गलत चीजें करें, तो दिस मीन्स वी लैक डिसिप्लिन। जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज है वो हम लैक कर रहे हैं। जब मेरे को पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, मेरी फैमिली के लिए अच्छी है, मेरे जॉब के लिए अच्छी है, फ्यूचर के लिए अच्छी है, और मैं उसको तभी भी नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसा नहीं है, या मेरे पेरेंट्स जो है डॉक्टर नहीं है, या मेरे पेरेंट्स के पास ये नहीं है, बड़ी वाली कार नहीं है। नहीं, यू नो, एवरीबडी हैज टू फाइंड हिज ओन एवरेस्ट। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मेरी टॉक सुन के कई बार लोग बोलते हैं कि यार हमें भी एवरेस्ट चढ़ना है, मैंने कहा नहीं, यू नो, दैट्स नॉट द एम ऑफ दिस टॉक। एम ऑफ दिस टॉक इज कि आपकी लाइफ में जो एवरेस्ट है वो आपको अचीव करना है। वो एक जॉब हो सकता है, वो आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम हो सकता है। एम इसकी जो लेसन्स मैंने आपको बताए हैं, वो आप लेसन्स अपने एवरेस्ट के लिए इंप्लीमेंट करें, और देन यू वर्क फॉर इट। जैसे मैंने बताया, जैसे हमने कड़ी मेहनत की, स्ट्रैटेजी बनाई, प्लान किया, वैसे आप अपने एवरेस्ट के लिए उसको ट्रेन करें, और उतनी मेहनत से करेंगे तो आप भी श्योर शॉट 100% अपना एवरेस्ट क्लाइम कर पाएंगे। तो ये था एज फार एज द फर्स्ट। Yeah, I think just to interrupt, I think you made a very super point by saying that you have to find your own Everest.
ऐसा नहीं है कि Right. सबको अभी देखो आप सबको जाके नेहरू इंस्टीट्यूट में जाके माउंटेनियरिंग का कोर्स करके एवरेस्ट चढ़ने, आपका दिमाग में जो आपका एवरेस्ट है आपको वो हासिल करना है. दैट इज द पॉइंट विच रोमिल इज मेकिंग, राइट. सो रोमिल, दीक्षा का सवाल था कि यार व्हाट इज देयर एनी एज लिमिट फॉर लर्निंग दिस कोर्स, व्हाट इज द प्रोसेस एंड हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू स्टार्टेड द क्लाइंब? Okay, so that's a very good question. मेरी जो डॉटर है, she is 14 years old. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में क्या होता है, अगर आप 14 साल के हैं तो आप एक कोर्स होता है एडवेंचर कोर्स, ठीक है, 14 दिन का कोर्स होता है, 7,500 उसकी फीस होती है. ऑनलाइन अगर आप नेट पे सर्च करेंगे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. ऑनलाइन उसका फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पैसे जमा करने हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. आजकल तो सब बच्चों को हमसे ज्यादा पता है इनफैक्ट कि कैसे ऑनलाइन चीजें एक्सेस करनी है, तो सब कुछ अवेलेबल है. 14 ईयर्स से अगर आप हैं तो आप एडवेंचर कोर्स कर सकते हैं. अगर आप 18 ईयर्स एंड अबव हैं तो आप जा सकते हैं बेसिक कोर्स के लिए. गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, फीस बहुत सब्सिडाइज्ड है. अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो महंगा पड़ता है, बट गवर्नमेंट के हैं तो रहना खाना पीना, जैसे मैंने बताया, 28 दिन का जो कोर्स है वो है बेसिक कोर्स. उसकी फीस अबाउट 14,000 है. डिटेल्स मैंने आपको बताया, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट भी काफी सारे हैं, एक जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, एक निमास है, ऐसी अटल बिहारी वाजपेयी है. अगर आप नेट पे देखेंगे आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है. तो वहां से आप कोर्स कीजिए, एडवेंचर कोर्स कीजिए अगर आप 18 से कम है. अगर आप 18 से ज्यादा है बेसिक कोर्स कीजिए. बेसिक के बाद आपको अगर इंटरेस्ट रहता है तो एडवांस कोर्स कीजिए, बिकॉज ये कोर्सेज जो है बहुत चैलेंजिंग रहते हैं. लर्निंग वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, बिकॉज मैं अपनी डॉटर को जैसे कोर्स किया था एडवेंचर कोर्स, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है. एक बार अगर आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे टफ टाइम्स में तो मेंटल मेकअप विल बी स्ट्रॉन्गर. एडवांस कोर्स कीजिए, फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद एक्सपीडिशन. राइट. सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज कि जब मैं एक्सपीडिशन में गया था तो कैसा फीलिंग था. सच बताऊं तो एज अ टीम मेंबर फीलिंग अलग होती है, एज अ टीम कैप्टन फीलिंग अलग होती है. बिकॉज एज अ टीम मेंबर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कि मैंने सबमिट करना है, वापस आना है ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज कम होती है. एज अ टीम लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, स्पेशली आर्मी के सेटअप में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे किसी इंडिविजुअल जो मेरा टीम मेंबर है उसकी कोई मिसहैप हो जाए. बिकॉज जैसे मैंने बताया बहुत सारी डेथ्स हो रखी हैं, तो ऐसा आप ये नहीं चाहते कि जिंदगी भर आपके दिमाग में ये लोड रहे, कि ये परेशानी रहे कि आपकी गलती की वजह से या आपकी पुअर ट्रेनिंग की वजह से या किसी भी वजह से आपके टीम मेंबर को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई. तो इसलिए एज ए टीम मेंबर डिफरेंट फील रहती है. एंड एज ए टीम लीडर मेरा यही कंसर्न था कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि मैं अपनी टीम को ढंग से गाइड ना कर पाऊं. एंड आई वुड से हैट्स ऑफ टू माय टीम. यू नो, माय टीम मेंबर्स वर सुपर फिट एंड वेरी वेरी गुड इन कॉमराडरी. जो टीम बॉन्डिंग वाली चीज थी, जैसे सर ने पहले बात किया, बहुत ही ज्यादा थी. तो ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको ऊपर पुश करें. पॉजिटिव नेगेटिव आपके ग्रुप में होते हैं. अगर आप अपने काउंट कर लीजिए दिमाग में 5 फ्रेंड्स, अगर आपके 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर वो नेगेटिव हैं, बुरी आदतें हैं, तो आप नेगेटिव ही रहेंगे. दैट्स सिंपल वर्ड्स में ये चीज कह सकते हैं. सज्जन भाई, कांट हियर यू. Romil, I'm taking one last question from the student. There's a गीतांजलि और कुशवा ने सवाल पूछा है कि ये कितना समय लगा आपको टोटल एक्सपीडिशन में और कितना बेस कैंप्स थे? ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इंडिया से हम गए थे 2 अप्रैल को और 2 जून को हम वापस आए थे इंडिया, क्योंकि नेपाल से आपकी टाइम स्टार्ट होती है. तो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 दिन लगते हैं आपको यहाँ से जाके वापस आने में. बट होता क्या है, जब आप यहाँ से जाते हैं, पहले आप काठमांडू जाते हैं, 3-4 दिन आप काठमांडू में रुकते हैं. अगर आपने कुछ वहाँ का काम है, शॉपिंग करनी है, सामान गेयर वगैरह लेना है, बिकॉज नेपाल में ज्यादा अच्छा मिलता है, तो वो करके आप फिर लुकला जाते हैं. काठमांडू से लुकला की फ्लाइट होती है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है. बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, बिकॉज वहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है. लैंडिंग के लिए बहुत छोटी एयर स्ट्रिप है. अगर आप अगेन यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लुकला ट्रिप के बारे में. वहां से अबाउट 10 to 12 डेज का आपका ट्रैक रहता है टू बेस कैंप. एंड बेस कैंप पे अगर आप पहुंच गए तो इट टेक्स अबाउट 40 to 45 डेज. जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं होता कि आप बेस कैंप से 1, 2, 3, 4 और सबमिट कर रहे हैं. तो आप क्या करते हैं, बेस कैंप पे पहुंच गए, फिर कैंप 1 में जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप में आते हैं. उसके बाद कैंप 1 में जाएंगे, फिर कैंप 2 में जाएंगे,
फिर वापस बेस कैंप में आते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी इज नॉट यूज टू लो ऑक्सीजन लेवल्स, कम आपकी जो बॉडी हैज यूज टू सी लेवल पे जो ऑक्सीजन है, बट ऊपर क्या है ऑक्सीजन की लेवल कम होती रहती है, तो आपको बॉडी को एडजस्ट करना है कम ऑक्सीजन के लिए, तो इसलिए आप ऊपर जाएंगे फिर वापस आते हैं फिर ऊपर। तो ऐसे 4 रोटेशन हमने की थी, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, एंड दिस इज अगेन माइंड गेम, यू नो, जैसे हम बताते हैं कैंप 3 में है, आपको पता है समिट ऊपर है, बट आप नीचे बेस कैंप में आते हैं, कैंप 3 से कैंप 2, फिर कैंप 1, फिर बेस कैंप, और फिर उसके बाद आप वर्ल्ड की एजेंसी से, बेस्ट एजेंसी से वेदर की प्रेडिक्शन लेते हैं, और जब आपको पता चलता है कि इस डेट को वेदर ठीक होगा, देन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अगेन, एंड देन इट टेक्स अबाउट 40 to 45 days to go from base camp to summit and come back after all the 4 rotations. Romil, I think you have clearly, demonstrated to all of us in the session. आपने clearly साबित कर दिया कि सब कुछ mind में है, और once you unlock your mind, amazing thing happens. Actually, most of us live in our comfort zone, Yeah. And once we come out of our comfort zone, amazing things happen. मैंने सुना है कि एक head rush होता है, that glorious head rush of diving deep into the unknown. आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसमें जो मजा आता है कि अननोन को फेस करना, उसमें जो मजा आता है, मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति को लाइफ में एक बार अपना बैग पैक करके कहीं भी भटक जाना चाहिए. दे शुड गेट लॉस्ट इन द विल्डरनेस. क्योंकि अकेले में जब आप रहेंगे कहीं दूर, तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में समझने और सीखने को मिले. क्या आप सहमत है इस बात से? जैसे आपने एक चीज बताई, इसी चीज को हम कहते हैं लीप ऑफ फेथ भी. जैसे जब आप एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं, तो जब हेलीकॉप्टर में है, एरोप्लेन में है, तो 3 लाइटें लगी होती है वहां पे, रेड, येलो एंड ग्रीन. तो एज एन ऑफिसर या टीम लीडर आप सबसे पहले जंप करते हैं. तो जब पीछे का गेट खुलता है, ठीक है, तो आपको भगवान का याद आता है कि भाई पैराशूट खुल जाना चाहिए. पैराशूट नहीं खुला तो उस साइड से तो मतलब ही नहीं है. तो दैट लीप ऑफ फेथ एंड अननोन वाली चीज जो रहती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज आपको पता है आपको स्टेप करना ही है. तो जब एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड से उड़ रहा है, आपने जंप किया, आप काउंट करते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000 पे आप ऊपर देखते हैं. अगर पैराशूट खुल गया तो जिंदगी बच गई, अगर नहीं खुला तो फिर आप इमरजेंसी वाले को खोलते हैं, इमरजेंसी पैराशूट आपके पास रहता है. बट अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो आप नीचे पहुंच जाएंगे, पैराशूट खोल भी नहीं पाएंगे, यही सोचिए कि पैराशूट खुल रहा है. तो इससे लीप ऑफ फेथ, एंड जैसे आपने बताया, अपने ब्रेन में या अपनी लाइफ में ऐसी चीज करनी है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है. अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे फिर आप अचीव नहीं कर पाएंगे. अगर आपका टारगेट ऐसा है जो कि वर्थ अचीविंग है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग व्हिच इज वर्थ अचीविंग इन लाइफ, देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स. This was such a wonderful session. It was such a delight to have this session with you, talk with you. I hope the students have thoroughly enjoyed. And my takeaway is 2 things you have said. One is leap of faith, बहुत जरूरी है, and that leap of faith, today is the day, now is the time. Second thing, आपने जो बात की जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जो प्रभावित किया, that is about find your own Everest. हर व्यक्ति को अपना एवरेस्ट ढूंढना है और उसमें सक्सेस पाना है. तो thank you, Romil, for your time. And it was absolute delight to be with you. And thank you, students, for participating wholeheartedly. And we look forward to being with you in our next session on Saturday. Thank you. Bye bye. Have a great day, everybody. Thank you, Romil. Thank you, Sajjan bhai. Thanks, everyone. Bye bye.